This is Naresh Kumar in front of you, and you are watching my YouTube channel, Study Khajana, the English Guru. And today I am going to teach you the new topic, future perfect tense. Future perfect tense here, and it can be say in Hindi language, पूर्ण भविष्यत काल. The identification of this tense is चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होंगे, ये होगी. This is the clauses that ends with the हिंदी sentence. यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में ये सारे जो वाक्यांश रहेंगे तो हमें समझना चाहिए कि इस पर जो है यानी इन पंक्तियों पर जो है उस पर जो रूल अप्लाई करना है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल को जानते आइए. ये मैंने लिखा है पॉजिटिव के लिए. पॉजिटिव मतलब कि एफर्मेटिव को ही पॉजिटिव कहते हैं. ये स्वीकारात्मक या हकारात्मक भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है. स्वीकारात्मक है इसका हिंदी. स्वीकारात्मक सेंटेंस के लिए करते क्या है, इन पॉजिटिव सेंटेंस at first you have to write subject of the sentence, then shall and will. Shall and will is the helping verb for this type of tense. And now have plus v3. V3 is the subject and the rest. Rest O for object and R for rest. R that is rest words of the sentence. जो भी हिंदी वाक्य हमारा रहता है और ऑब्जेक्ट के बाद जो सारे वर्ड बचते हैं, जो सारे शब्द बचते हैं या फ्रेज बचते हैं, शब्दांश बचते हैं, क्लॉज बचते हैं, उन सभी को जो है रेस्ट के कैटेगरी में रखा जाता है. और रेस्ट में वैसे कोई नियम हुआ नहीं करता है. रेस्ट में जो है चाहे जितनी बार भी आप बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. बस उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम जो रहता है, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी आज कल परसों. नेगेटिव सेंटेंस यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, देन शैल एंड विल द हेल्पिंग वर्ब, एंड नॉट. नॉट you have to use not between shall, will and have. Not can be used in between shall, will and have. And then after v3 and o plus r. In interrogative sentence in interrogative sentence you have to write shall and will and then subject and have plus v3 plus o plus r. Sentence, interrogative sentence, at first you have to write shall, will of the sentence and then subject plus have plus v3 plus o plus r. यानी इसके अंदर जो है हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देना है जो कि है shall and will. And in WH questions which is started from what, how, when, where, which, this type of sentences are called WH questions. In WH questions you have to write first subject of the sentence. You have to write first WH words, then shall and will, and after subject, and rest is okay. Rest is same, no changes. First person you have to write, you have to choose. In first person you have to choose shall have, while in rest person 2 and second person and third person you have to write will have. Let's now come to the example. वह जा चुका होगा. You have to choose subject of the sentence first. This is subject of the sentence, and then shall and will. You have to choose will here, and then जा चुका होगा, that is have gone, and वह नहीं गया होगा. This is negative sentence. This is not, so it is negative sentence. So you have to translate into English. He will not have gone. This answer is ready. And in yes no question, क्या वह गया होगा. यह हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या वह गया होगा, और आशा रखते हैं कि वो यस और नो इसमें उत्तर दे. यदि वह उत्तर यस और नो में देता है तो इस तरह के क्वेश्चंस को
such type of questions are called yes no question, क्योंकि इसका आंसर जो है यस और नो में देना संभव है। जैसे क्या आप लंबे हैं, यदि मैं लंबा होऊंगा तो यस, नहीं होऊंगा नो। तो ये जो सेंटेंसेस है, ये जो क्वेश्चंस है, दीज आर सम क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर with yes or no, so it is called yes no questions. To translate into English, first you have to write shall and will. You have to write shall and will. So here, will he have gone? Okay, now वह कहां गया होगा? क्या इसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं? वह कहां गया होगा? नो, इसका उत्तर यस नो में दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन नहीं कहते, इसे कहते हैं WH क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसकी अंग्रेजी कैसे करते हैं? what should I have to do to translate such type of sentences? You have to translate into English such type of sentences. You have to write first the WH word of this sentence. The WH word of this sentence is where, and then you have to choose shall and will. You have to choose shall and will. So here is will, where, will, and then subject of the sentence. Subject is he and have plus D3 gone. Your answer is ready. And now some more examples. तुम पढ़ चुके होगे, subject of the sentence you will have read. Read is V3 not V1. राजा काम कर चुका होगा, राजा will have worked. You can write here Raja will have done the work also. Done the work also you can write here. क्या मैं बाजार जा चुका होऊंगा? Shall I have gone to market? वे क्यों नहीं आए होंगे? WH word, why will they not have come? So you have seen here a lots of sentences and a lots of examples, and I hope if you listen my voices clearly and if you read, if you educate here with sincerity, then you will be able to translate into English, whereas long sentences are also you can solve very easily. It's my pleasure to know that you are watching my Study Khajana, the language guru. And now come to the long sentences. The long sentences can solve you also in very easy way. Come to the example. वह आज 3 बजे रानी के लिए बहुत से खिलौने पटना से क्यों ला चुका होगा? बनाना क्या है इसको? सबसे पहले क्या बनाना है? तो आप देखिए रूल, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव, V3 प्लस O प्लस R, यानी इस वीडियो का स्टार्टिंग में जो दिया रूल वही है। रूल में कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं। बस आपको उसी रूल पर माइंड को कंसंट्रेट करें और आपको बिल्कुल अच्छे से और आसानी से इजी वे में आप बना सकते हैं इंग्लिश को। कैसे? देखिए, वह क्यों ला चुका होगा, आपको इतना बनाना है। वह क्यों ला चुका होगा, आप इतना ही देखिए पहले, बाकी का बाद में देखिएगा। आप वह क्यों ला चुका होगा इसको बनाएंगे इस तरह।
क्यों ला चुका है, यानी ये जो है वो WH वर्ड है। WH पहले लिखेंगे, वाई विल ही हैव बाउट। अब ये बन गया क्या, ये बन गया वह क्यों ला चुका होगा। अब राइट हैंड साइड से चलिए, आप दाहिनी ओर से चलिए। पहले ऑब्जेक्ट क्या है इसका देख लीजिए, बहुत से खिलौने, लॉट्स ऑफ डॉल्स, बहुत से खिलौने। यहां टॉय यूज कीजिए, टॉय सुंदर रहेगा, क्योंकि डॉल का मतलब गुड़िया होता है। टॉयज, व्हाई विल ही हैव ब्राउट अ लॉट्स ऑफ टॉयज। अब है पटना से, फ्रॉम पटना, किसके लिए, रानी के लिए, फॉर रानी। कब की बात है, आज 3 बजे, एट 3 o'clock टुडे। सेंटेंस बन गया, कोई परेशानी नहीं हो गया बच्चों। यदि आप सेंटेंस को एक बार कंसंट्रेट करके समझ लेते हैं, इसके रूल को अप्लाई करने का जो तरीका है उसको देख लेते हैं, तो कोई भी सेंटेंस आपसे छूटेगा नहीं, चाहे जितना भी लंबा क्यों ना हो। 4 किलोमीटर का सेंटेंस है, बनेगा आपसे। देखिए, राम अपने बच्चों के साथ 11 फरवरी को मुंबई के शिवाजी टर्मिनल पर राजधानी एक्सप्रेस पकड़ रहा होगा। अब इसमें क्या है, इसमें है राम पकड़ रहा होगा, तो इतने को बनाइए पहले, राम पकड़ रहा होगा। उसके बाद देखेंगे क्या पकड़ रहा होगा, कहां पर पकड़ रहा होगा, किसके साथ पकड़ रहा होगा, कैसे पकड़ रहा होगा। तो पहले बनाइए राम पकड़ रहा होगा। देखिए कैसे बनता है, राम विल हैव काउट। राम पकड़ रहा होगा, राम विल हैव काउट। अब देखिए क्या पकड़ रहा होगा, ये जो है राजधानी एक्सप्रेस पकड़ रहा होगा। राजधानी एक्सप्रेस आप जानते हैं ट्रेन का नाम है, इसलिए लिखेंगे द राजधानी एक्सप्रेस। चलिए, हो गया कि राम जो है वो राजधानी एक्सप्रेस पकड़ रहा होगा। अब देखिए ये कहां पर पकड़ रहा होगा, तो ये जो पकड़ रहा है वो है शिवाजी टर्मिनल पर। कहां पकड़ रहा, शिवाजी टर्मिनल पर, 8 शिवाजी टर्मिनल। और शिवाजी टर्मिनल जो है वो कहां का जगह है यार, तो ये मुंबई का है, मुंबई का शिवाजी टर्मिनल। यहां हम लिखेंगे ऑफ मुंबई। अब है कि ये 11 फरवरी को और अपने बच्चों के साथ, तो यहां 2 कंडीशंस हैं, एक है अपने बच्चों के साथ और दूसरा पार्ट है 11 फरवरी को। और 11 फरवरी यानी कि डेट, यानी कि एडवर्ड ऑफ टाइम, तो इसको तो लास्ट में रखना है, तो हमें पहले लिखना होगा अपने बच्चों के साथ, विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ। अब है 11 फरवरी को, ऑन 11 फरवरी। सेंटेंस बन गया आपका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोई ऐसा सेंटेंस बना ही नहीं है जो हिंदी है उसकी अंग्रेजी आप नहीं बना सकते हैं। बनेगा भाई, आपसे ही बनेगा, बस एक बार सीखें तो। और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको प्रत्येक दिन न्यू वीडियो नए नए टॉपिक पर मिलता रहेगा, खासकर इंग्लिश के लिए। योर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टडी खजाना, द लैंग्वेज गुरु, and I hope you learn very interestingly and you concentrate your mind sincerely and you take advantage of my such videos. Thank you.